सिंपली हमने देखा था कि स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास. व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल क्लास? Once you create object of an string class, you cannot modify that. And why string class objects are immutable? Why string class is made immutable? Why string class objects are immutable? There are multiple references pointing to the same string class object. That's the reason it is made immutable. What are the different ways to create string class objects? Using new keyword, that is, and using literal. So new keyword is for every other class in Java. Using new keyword, we can create object of any other class. Just like other classes, string class object also can be created using new keyword. And there is another way. What is that? Literal way. So how do we create object using new keyword way? Directly class name. We have class name, reference name equal to new keyword, string constructor, and inside that we can specify the value in the double quotes if you want. Right? If you do not specify the value, this will create an empty string. It will internally, whenever you create a string class objects, internally it is going to create object of array. It is going to create an array of characters. Okay. Then once you are creating object with the this new keyword, where objects are stored, which memory area? Heap memory area. Only heap, or is there any other way? There is SCP also. There is SCP also. So when what is SCP? It is a string constant pool memory area. So what it holds? So that special memory area is to store only string class object, no other class object. Right? Now in SCP also object of the string class will be created if the content of the object is not already present. If it is already not present, then only object will be created, otherwise it will not be created. Now when you create a object of a string class using literal way, where object will be created? Inside the SCP. Whether it will created in the heap memory area, whether object will be created inside the heap memory area, object will not be created inside the heap memory area when you are using literal way. When you use literal way, if the object is going to be created, that will be inside the SCP. If the object content is already not present, if it is already present, then it will not be created. What happens in that case? You get a reference to the already existing object. You are going to point to the already existing object, right? Then string class provides several constructors methods. There are a lot of methods string class provides. So what are the methods are present? Usually, like let's say I want to find out the length of the particular string, means how many characters are there. So there is a length method. There is a length method, and there is a length variable and length method. What is the difference? Length is a method present inside the string class, and length is a variable which is associated with every array, which returns the size of the array, which maintains the size of the array. Now what are the methods? Now let's say you want to, now whenever you try to work on that object, a object, since that object is an immutable, you cannot modify anything. Now let's say you want to convert that string into uppercase, lowercase. When you try to do that, a new object will be created. Now let's say you say str dot to uppercase to lowercase. In that case, what happens? New object is created, and if you want to use that, then you take a reference. You take a reference. So what are the methods? You have to uppercase, lowercase. If you want to remove the spaces, we have trim. If you want to replace some of the characters, so you are not modifying the existing object. There will be new object created. Now when you want to replace something, you are replacing in the new object. You are creating a new object with a new value, right? Now from the existing string, you want to create a substring. You can also create that substring, means from the given string you want to create another string. That can be small or entire string also you can take. Then in that particular string, you want to, let's say, check whether this particular string is starting with a particular word or a character. Then we have starts with, ends with. You want to search in the given string. What is the method we have? Contains. So these methods, starts with, ends with, contains, they will return boolean true or false. Then we have equals method. Equals method also we have seen. So equals method is overridden inside the
string class. Originally where it is present inside the object class. And the equals method, which is overridden inside the string class, what it does, it checks the string content. What it checks the string content. It checks the string content. There is another method to compare two string objects. What is that? Equals ignore case. In that case of the string will not be compared. It will be ignored. So by ignoring the case, the strings will be compared. So equals method is exactly 100%. It will check the case also. Okay. And what is the limitation of string class? What is the limitation of string? This is immutable. Yes. Sorry. Yes, correct. So when you try to print the string reference, we have, like when you try to print a reference of a string class or an object, a reference which is pointing to the string object, it will print the string content. So why it is so? Because toString method is overridden inside the string class. Right? Limitation of the string class is it's a immutable. It's immutable. Now I will tell you the worst programming practice. Lot of people do that. What is that? I'll tell you. Now let's say I ask you that you reverse a string. So what lot of people do is, whenever lot of people do this mistake. So this is the worst programming practice. Let's say you have string. So this is a string we have. Now I want to reverse the content of this particular string. So what people do? There are multiple ways. So first way, this is also wrong way. This is also wrong way. So what we are doing, we run a for loop and you will continue till. So you will start from str dot length minus 1 and index should be greater than or equal to 0, and you say index minus minus. So in this case you are not modifying the string, only printing in reverse order, only printing in. अभी ये बहुत सारे लोग करते हैं, उनको लगता है कि हमने स्ट्रिंग रिवर्स कर. Is this reverse? So I want to get a character at a specified index. So we have a method called as caret. और ऐसी बहुत सारे हमने मेथड्स उस दिन देखी थी. We have covered most of the methods. अभी ये प्रिंट क्या करेगा? It will just print from the last index to first index, that is 0th index. यहाँ पर बस प्रिंट कर रहे हो आप. और फिर मैं उनको बोलता कि थोड़ा इसको और थोड़ा सही करो, तो वो क्या करते हैं? दूसरा वे. So what they do, they take another string. So what they do, this is just a printing. So when I ask them to improvise, what they do, how they improvise? So they take another another string. तो क्या करेंगे? पहले तो एक स्ट्रिंग और यहाँ पर बोलेंगे रिवर्स, ऐसे करेंगे और एक फॉर लूप लेंगे फिर से, मतलब सेम वहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे? वो रिवर्स प्लस इक्वल टू str डॉट कैरेट और इंडेक्स. ये करते लोग. इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस, ठीक है, और लास्ट में वो प्रिंट करेंगे रिवर्स. ये करते बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू दिस. व्हाट इज
Is it correct? You are creating another string. That is correct, right? You are creating another string. That is perfectly fine. So this is नया स्ट्रिंग क्रिएट हुआ, लेकिन कितना स्ट्रिंग क्रिएट हुआ? कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड? कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए इस प्रोग्राम में? कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए यहाँ पर? करेक्ट, यू सेड करेक्ट। मतलब लेट से जितना कैरेक्टर है उतने बार आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। लेट से देयर आर 10,000 कैरेक्टर्स, then you are creating 10,000 string objects in this, and this is the worst programming practice. आपका एप्लीकेशन ऐसे फटाक से गायब हो जाएगा। ऐसे लूप में कभी भी ऐसे ऑब्जेक्ट मत क्रिएट करना। तो क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट इन अ लूप, दिस इज वर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या वर्स्ट है? यहाँ पर what is worst? If there are 10,000 characters in your original string, then you are creating 10,000 objects. You are creating 10,000 objects. That is worst. अभी इसको बेटर क्या कर सकते फिर? एक तो दूसरा वे है कि आप मतलब बेटर वे बोल रहे हो अभी ये तो दोनों भी गलत वे है। इसमें पहला तो रिवर्स नहीं हो रहा, पहले तो बस प्रिंट कर रहे हो आप, दैट इज नॉट रिवर्स, बट पीपल ऐसे करते हैं। दूसरा कि आप नए नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स लेते हो और उसमें क्या करते हो आप, मतलब रिवर्स का कंटेंट रखते हो, इसमें भी गलत है। तो आप क्या कर सकते हो? तीसरा तीसरा वे है कि आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो। अगर आपको लेट्स से स्ट्रिंग बिल्डर तो प्री डिफाइंड लॉजिक हो गया, दैट इज प्री डिफाइंड लॉजिक। अगर इंटीरियर नहीं चाहता कि प्री डिफाइंड मेथड कोई यूज करे, अगर इंटीरियर नहीं चाहता कि आपको प्री डिफाइंड कोई मेथड ना यूज करे, तो आप खुद का भी लॉजिक लिख सकते हो। या अभी आपको स्ट्रिंग बिल्डर नहीं पता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। आप क्या कर सकते हो? दूसरा एक कैरेक्टर एरे कर सकते हो। कौन सा? हाँ कर सकते हो ना, कैरेक्टर एरे। तो आप कैरेक्टर एरे कर सकते हो। कैरेक्टर एरे, पहले तो आप कैरेक्टर एरे क्रिएट करो एक, मतलब इंटरनली कैरेक्टर एरे ही है, बस आपको उसको रिटर्न करना है। ये कर सकते हो आप कैर एरे। कैसे करोगे आप कैरेक्टर एरे? जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करो आप किसमें? कैरेक्टर एरे। तो उसके लिए मेथड है टू कैर एरे। फिर इस कैरेक्टर एरे में आप करो, ये भी कर सकते हो। मतलब दिस इज नॉट, मतलब इससे तो अच्छा ही है। यस, इससे तो ये अच्छा ही है। दिस सोल्यूशन इज गुड, ये वाला सोल्यूशन, दिस इज वे बेटर देन दिस। ये तो बहुत वर्स्ट है। वही लॉजिक, वही लॉजिक। सेकेंड वे कौन सा? ये वाला वे? भैया ये कैसे चलेगा? ये तो नहीं चलेगा ना। इसमें तो आप क्या कर रहे हो? ये कैसे करोगे आप? प्रिंट नहीं करना, आपको प्रिंट नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट नहीं करना है। हाँ कर सकते हो, हाँ चल जाएगा। मतलब क्या बोला मैंने? कैरेक्टर एरे देखो, हाँ मतलब यूर करेक्ट। हाँ तो क्या करो आप, कैरेक्टर एरे कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो कैरेक्टर एरे क्यों कन्वर्ट करना है आपको? जरूरत ही नहीं ना। क्योंकि आप क्या करो, एक कैरेक्टर एरे कैसा, मतलब मैंने आपको बस मेथड बताया। अभी आपको क्या करना है, कैरेक्टर एरे कितना क्रिएट करना है, कितने साइज का? एस का लेंथ कितना है? कर दो बस, हो गया आपका एरे क्रिएट। अभी इस केस में आपको क्या करना है, बस रिवर्स में आपको बस कंटेंट उसमें ऐड करना है। क्या करना है आपको? वहां से स्टार्ट करो, और आपका जो कैरेक्टर एरे है, कैरेक्टर एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल टू होगा रिवर्स, सिंपल। आपका एरे क्रिएट हो गया।
और फिर आपको क्या करना है, इस एरे को फिर से आपको स्ट्रिंग में चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग रिवर्स न्यू स्ट्रिंग, और उसे आप फिर कैरेक्टर एरे दे सकते हो, फिर प्रिंट करो आप रिवर्स, ये भी कर सकते हो। ये भी सिंपल लॉजिक, ये भी कर सकते हो आप। कहाँ से? हाँ 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 हाँ, क्या क्या, सॉरी। करेक्ट करेक्ट, इंडेक्स, यहाँ पर दूसरा कुछ लेना पड़ेगा इसका वैल्यू, आप इसका टेम्पररी टेम्प, करेक्ट, टेम्प लिख, और टेम्प को आप क्या करो, हाँ चल जाएगा, ये फॉर लूप में भी ले सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। ये किसके लिए टेम्प? आपको एरे के लिए, दैट्स इट, दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन, कैन डू दैट। ठीक। और इससे बेटर है कि आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो, स्ट्रिंग बिल्डर हम यूज करेंगे अभी, वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग बिल्डर ऑल्सो। यहाँ तक क्लियर है सबको? रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, डोंट डू दिस, मैंने ये वे नहीं बोला, ये रॉन्ग है, ये ऐसा भी नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना आपको, इफ यू वांट यू कैन डू दिस वे, यू कैन डू दिस वे। हाँ लेफ्ट, लेफ्ट, हाँ एरे कन्वर्ट कर, लेकिन एरे क्यों कन्वर्ट करना है आपको? हाँ उसमें, हाँ मतलब आपको उस वे से कब करना पड़ेगा, सेम एरे के ऊपर, ऑलरेडी एरे, तो लेकिन एरे क्यों वो करने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई भी चल जाएगा। एरे क्रिएट हो गया आपका उस लेंथ का, फिर से आपको रीड करो वहां से, और उसमें पुट कर दो, ठीक है, ओके। नाउ वी नो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ string, it's immutable. Now there is a requirement that I want to perform lot of manipulations, I want to perform lot of manipulations on the given string, जो भी मेरा स्ट्रिंग होगा उसके ऊपर मुझे बहुत सारे मैनिपुलेशंस करना है, तो स्ट्रिंग इज नॉट द ऑप्शन। स्ट्रिंग पे क्या होता है, हर बार कोई ऑपरेशन करोगे इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, it will create a new object, right? So instead of that what we can do, we can actually go with the some other classes। अभी जावा ने बस एक ही क्लास नहीं दी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के साथ साथ उन्होंने और भी बाकी सारी क्लासेस भी दी है, तो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर ये अलग कुछ क्लासेस है, so we have two classes, string builder and string buffer, so these are the two classes, these are two classes we have। अभी दोनों क्लासेस एग्जैक्टली सेम है, एक साथ क्यों दिए, दो अलग अलग क्यों दिए, उन दोनों में एक ही डिफरेंस है। अभी पहले तो देखो, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर बोथ आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, बोथ आर म्यूटेबल। पहले तो क्या है, म्यूटेबल, दे आर म्यूटेबल, इसका मतलब हो गया कि उनका ऑब्जेक्ट कंटेंट कैन बी चेंज, देयर ऑब्जेक्ट कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड, मतलब नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसी ऑब्जेक्ट में आप कंटेंट मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा, नाउ स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका एक ही है बस आपके पास, बस लिटरल वे किसके लिए था, स्ट्रिंग के लिए था, बाकी कोई भी क्लास के लिए आपके पास लिटरल वे नहीं है। तो वी कैन क्रिएट objects of these classes using only new keyword,
literal way is not available for these classes. ये याद रखना. Now where objects will be stored? Perfect. These objects will be stored inside the heap and not in SCP. ठीक. और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वल्स मेथड. Equals method is not overridden inside these classes. मतलब इन क्लासेस के अंदर आपको इक्वल्स मेथड ओवररिटन नहीं है. क्लियर यहाँ तक? बहुत सारी सिंपल. और these are also exactly same. These are also exactly same. So these classes, what is the use of these classes? These classes are used to store group of characters in a efficient manner. इनका यूज क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए. So we can perform several manipulations on a group of characters. क्या manipulations कर सकते हो आप? Such as append मतलब adding the content at the end, insert at whatever the location, at the before, in between or at the end, delete, reverse, set. There are lot many operations. So these all operations are there. Now string builder and string buffer are exactly same, except one difference. What is the difference? That is, string buffer is a thread safe class. We will be learning this thread safety क्या होता है in the multi-threading. For now, understand it is a thread safe class, meaning most of the methods of string buffer are synchronized. Most of the methods are synchronized. अभी सिंक्रोनाइज क्या होता है, थ्रेड सेफ्टी क्या होता है, विल बी लुकिंग इनटू मल्टी थ्रेडिंग. फॉर नाउ अभी के लिए समझो, मल्टीपल थ्रेड्स कैनॉट एक्सेस द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर एट द सेम टाइम. इसका मतलब आई विल टेल यू इन अदर वे आल्सो. मल्टीपल थ्रेड्स मतलब देखो, अभी आप थ्रेड क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड मतलब ब्लॉक ऑफ 4, और मल्टी थ्रेडिंग मतलब होता है रनिंग मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड एट द सेम टाइम. थ्रेड आप ऐसे समझो, लेट्स से आपका बैंक अकाउंट होता है, राइट? So we can perform operations or transactions on your account in different ways. Example, ATM से विड्रॉ कर सकते हो, कार्ड स्वाइप कर सकते हो, फिर इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, बैंक में विजिट कर सकते हो. तो एट ए टाइम एक ही ट्रांजेक्शन होगा, तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट द सेम टाइम नहीं होंगे. डिपॉजिट कर रहे हो तो एक डिपॉजिट करेगा, दूसरा विड्रॉ कर रहा है. तो आपका लेट से इनिशियल बैलेंस था, आपका लेट से 100, आपका इनिशियल बैलेंस था 100. अभी एटीएम से आपने कुछ डिपॉजिट किया, या कैश सीडीएम मशीन्स भी हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. एटीएम है, सीडीएम है, देन वी हैव यूपीआई है, कार्ड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अभी लेट से आपने कार्ड से स्वाइप मारा, लेट से 100 रुपीज़ का स्वाइप मारा,
उसी टाइम एटीएम में आपने क्या किया, डिपॉजिट या सीडीएम से कुछ पैसे आपने डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट के टाइम उसने बैलेंस रखा था 100 के ऊपर 10,000 प्लस आपने, बैलेंस हो गया आपका 10,100 रुपीज। लेकिन आपका अपडेट कितना होना चाहिए, 10,000 ही होना चाहिए। लेकिन उसने अपडेट करते टाइम क्या किया, बैलेंस का वैल्यू रीड किया 100 और उसके ऊपर 10,000 प्लस, तो आपका बैलेंस कितना अपडेट हुआ, 10,100। बट कार्ड स्वाइप किया तो आपका बैलेंस वहां पर अपडेट होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ ही कर रहे हो ना, दोनों ऑपरेशन एक साथ कर रहे हो, सो दिस शुड बी लॉक्ड। So multiple threads, you can think of multiple threads or this is particular a shared resource. This is a shared resource. आपका बैंक अकाउंट है ना, दिस इज शेयर्ड रिसोर्स अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। तो आपका बैंक अकाउंट ये ऑब्जेक्ट है, दिस शुड बी सेफ, दिस ऑब्जेक्ट शुड बी सेफ। मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा एक्सेस कर सकता है, मतलब विड्रॉ भी कर रहा है, डिपॉजिट भी कर रहा है, तो सारे एक ही सोर्स से होना चाहिए। तो अदर अदर जो भी सोर्स है उनको वेट करना पड़ेगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप इसे बनाओगे सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब एक ही थ्रेड एट ए टाइम इसको एक्सेस कर पाएगा। अभी स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्सेस एट द सेम टाइम। स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है इसका, तो एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस। क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रिंग बफर इज अ safe from multiple threads at a time, only one thread can access the methods of string buffer। string builder क्या है, कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है, but string buffer is specially designed for multi-threaded applications where multiple threads will not be able to access the methods of string buffer। तो इसको कैसे बोल सकते हो आप, तो one thread at a time can access the methods of string buffer class, and because of this what happens, other threads are waiting, तो इससे क्या होता है, स्ट्रिंग बफर बन जाता है स्लो। स्ट्रिंग बफर इज स्लो, स्ट्रिंग बफर इज स्लो एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर। Now there is one question also, whether string class is immutable class, sorry, it is a तो स्ट्रिंग बफर इज स्लो एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर। थोड़ा बसून जाती है, string buffer is slow as compared to string builder। Now my question was whether string is a thread safe class, is string thread safe? थ्रेड सेफ का मतलब होता है multiple threads cannot access this particular object at the same time, one thread will be able to access this this particular object at a time, right? इसे बोला जाता है थ्रेड। थ्रेड सेफ किसे बोला जाता है, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी लोग वेट करेंगे एंड देन दिस काइंड ऑफ वन बाय वन एक्सेस। अभी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आप मुझे बताओ, मल्टीपल थ्रेड्स अगर भी ऑप्शन देते कि सब कुछ जाओ और एक्सेस करो, वेदर दे विल बी एबल टू मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, whether they will be able to modify the content of string object। अगर हजारों भी थ्रेड्स देने दो आप, तो उसका स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कंटेंट मॉडिफाई कोई कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ऑल इम्यूटेबल क्लासेस आर थ्रेड सेफ। एक्सेस रीड करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट मॉडिफाई कर सकते हो क्या स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बिल्डर का कर सकते हो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई, यस। स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर आर म्यूटेबल। तो स्ट्रिंग बिल्डर तो मॉडिफाई हो सकता है, स्ट्रिंग बफर भी मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्सेस एट द सेम टाइम। लेकिन स्ट्रिंग बफर इट इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट वन थ्रेड एट अ टाइम, दैट इज द डिफरेंस। सो बाय डिफॉल्ट ऑल इम्यूटेबल। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, इज स्ट्रिंग क्लास थ्रेड सेफ? आंसर इज yes। Why? This is also one of the question asked for the interviewers in the interview for the experience also as well as freshers।
is string class thread safe? Answer is yes. By default, all immutable classes are thread safe because उनका कंटेंट मॉडिफाई कोई कर ही नहीं सकता. रीड करने दो, देयर इज नो प्रॉब्लम. Clear on this? I will talk about the methods of string builder. String builder and buffer are exactly same. There is no difference. Only difference is they are thread safe and string builder is not. क्या क्या methods है उनके पास? So we'll try to understand. वह बिल्डर को बंदर को कल कमजोरी आ गई कल से. वरना सोडे तो ठीक. कुठे जायचं तुला? कुठे राहिला? थोडी दाखवलं व्यवस्थित आराम कर. मेडिसिन इथे खाली तुला इथे जवळ कुठे? बघ बघ तुला एक जण जा. एक जण जा. नाही नाही नाही, तू बस, तू बस जा. ओके ठीक है. चलो let's talk about the string builder. How do we create objects of string builder and string buffer? अरे एक ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं. वी हैव न्यू कीवर्ड और आपको जो भी स्ट्रिंग देना है इसके इनपुट में दे सकते हो आप. अभी ये नहीं दोगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट होगा. देयर विल नॉट बी एनीथिंग. सो दिस इज the string. If I print this content, you can easily print that. So whenever I print the string builder or string buffer or string object reference, it will print the string content. मतलब जो भी string दिया होगा वो print करेगा. Because that is done internally, toString method automatically call होता है और ये toString method उन्होंने override करा है और वहां पर उन्होंने क्या इंटरनली प्रिंट दे दिया? कंटेंट उसका. One more thing, string builder also internally maintains array of character. और उन्हें string builder क्लास कैसे बनाया बताया आपको? It is built on top of string class. Internally उन्होंने क्या किया? They are internally also using, you see this, and internally they are using what they are using. They are using array of characters only. If you see, they are talking about array of this value of index. Where is this value of? See, they are internally also using array of characters to store. But even though they are using array of characters, they are allowing you to do the manipulations. Internally, string builder, string buffer, string, all of they are using array of characters. They are using array of character only to store the characters. Now let's try to perform some operations. So string builder dot, now we have multiple insert method. Insert method, we have multiple options. We can insert, there are n number of insert options. So we can insert integer, character, long, float, double, boolean, character, array, object, string. There are multiple things. If I say insert, I have to specify the offset, means where do you want to insert? 0th index, and I will say
Any string you can say. Any string you can insert. Or I want to append. Append means adding the content at the end. अभी देखो मैं सेम ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ. आई एम प्रिंटिंग द सेम ऑब्जेक्ट. आई एम प्रिंटिंग द सेम ऑब्जेक्ट. अभी आपको चेंज दिखाई देगा. कैन यू सी? गिव द स्पेस. Alpha is added at the beginning and append means add at the end. Append, we can append anything. If you want to append string builder, anything you can do that. String builder dot append. Append आप कैरेक्टर दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, जो चाहिए आप दे सकते हो. देखो यहाँ पर लेट्स से 100 वैल्यू. तो 100 will be appended at the end. So what is the content you want to try? You want to append, insert. अभी क्या कर सकते हो आप? और what all things we can do? Existing object के ऊपर क्या कर सकते हो? Modify. आप रिवर्स कर सकते हो. Can reverse that. Delete also. Now I want to reverse the content of this particular entire string. How do I do that? String builder dot reverse. You can specify there is a reverse also. Reverse, and reverse will reverse actually the content. See here. Can reverse the content of the string also. We can delete whatever the content you want to do. Delete. So delete. You can delete a specific character also. Delete a character, or delete. You can specify a delete. Now I want to delete 0 to let's say 5. This is something I want to delete. So this will delete. Now 0 to 5 what it will delete? Can you tell me? हाँ, वेलकम नहीं रे बाबा. रिवर्स हो गया स्ट्रिंग. रिवर्स स्ट्रिंग हो गया आपका. GIL ये कुछ तो कुछ तो ना. ठीक है, ये डिलीट हो गया. आप डिलीट स्पेसिफिक कैरेक्टर करना है तो आप वो भी कर सकते हो. डिलीट कैरेक्टर एट आई वांट टू से 0th इंडेक्स. दिस विल नाउ डिलीट n. रिमेन विल बी ah. Right? So whatever the operation you want to perform, all the reverse, delete, append, replace also, you want to replace something, you want to get the last index, you want to remove the spaces also, that also you can do that. Trim also, trim to size. There are multiple options. What is the operation? क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं पॉसिबल? पहले तो इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्ट, दिस इज अ वन ऑफ द थिंग. इंसर्ट, अपेंड, डिलीट, डिलीट कैरेक्टर एट. एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर कर सकते हो. ये तो हो गया. अभी रिवर्स कर सकते हो आप कंटेंट. रिप्लेस कर सकते हो आप कंटेंट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में. ये तो हो गया मैनिपुलेशंस. अभी रीडिंग के लिए भी आप कर सकते हो. आई वांट टू रीड लेट्स से इंडेक्स ऑफ. ये क्या करना है? इंडेक्स किसका पता करना है? इंडेक्स ऑफ. इंडेक्स ऑफ. इंडेक्स ऑफ. तो आप पता कर सकते हो कि इंडेक्स मुझे पता करना है कि लेट्स से ये रिवर्स हटा देता हूँ लिटिल. आई वांट टू नो द इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग. व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग? व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग? मतलब ये स्ट्रिंग कहाँ पर है? लेट्स से 2 भी कर सकता हूँ. 2 कहाँ पर, कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है? दैट आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है. 0 to 5 आपने डिलीट किया, फिर 2 आपका देखो सेकेंड इंडेक्स पे आपका 2 है. राइट. तो जैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ भी कर सकते हो आप. वैसे सिंपली लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब आप बोल सकते हो कि
ए सबसे ज्यादा, लेट्स से जी, जी का पहला ऑकरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर, तो मुझे लास्ट इंडेक्स चाहिए जी का, कैन गेट दैट। ये देखो 19th इंडेक्स है, तो वी गेट लॉट ऑफ मेथड्स आल्सो। स्पेस नहीं है, स्पेस भी सही होता है उसमें। हाँ तो डबल जी, मुझे लास्ट वाला जी चाहिए, जो सबसे लास्ट में आता है उसका इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स ऑफ करेंगे जी, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले जो पहला ऑकरेंस होगा वो मिलेगा इधर का। डिलीट वाला मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये स्ट्रिंग है। नहीं समझा क्या बोल रहे हो? इंडेक्स ऑफ किस, आप क्या चाहते हो, कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है? तो मतलब दो कैसे दोगे आप? हाँ हाँ, अभी टू कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर, क्या इंडेक्स है इसका, 6 7, और ये 8th इंडेक्स। अरे मैं ये कमेंट आउट कर दिया ना, डिलीट वाला, ये पहले डिलीट हो गया था ना, ये डिलीट कर दिया, तो मैं डिलीट रिवर्स वो सब कमेंट आउट कर दिया। जी कहाँ पर है, जी का इंडेक्स ये वाला मिल गया आपको, 16th। अभी मैं इसे लास्ट इंडेक्स ऑफ करता हूँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ 16, और ये लास्ट वाला कुछ तो होगा जो भी इंडेक्स होगा, 25। ठीक, now you want to know whether this string builder is empty or like this is empty के लिए मेथड नहीं है, ठीक है, दैट्स फाइन। स्टार्ट्स विद आपको पता करना है, स्टार्ट्स विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद और इंडेक्स ऑफ इक्वल्स लास्ट इंडेक्स ऑफ, या इंडेक्स एट ये भी बोल सकते हो, इंडेक्स ऑफ, ये सारी मेथड्स आप कर सकते हो। यहाँ पर दो चीज़ आपको मेंशन करना है, यहाँ पर आपने देखा होगा कैपेसिटी और साइज, दो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अभी कैपेसिटी और साइज क्या डिफरेंस है? कैपेसिटी एंड साइज क्या डिफरेंस है? इंटरनली कैपेसिटी क्या होता है, इंटरनली ये क्या क्रिएट करता है, एरे क्रिएट करता है, राइट? नाउ व्हाट इज द टोटल एरे साइज, that is capacity, and how many characters you have already inside that, that is size and capacity, these are two things। अगर आप चाहते हो कि कैपेसिटी आप खुद मैनेज करो, मैनेज करना मतलब, नाउ आई वांट टू से दैट, नाउ यू टेल मी, दिस कैपेसिटी हैज स्पेसिफाइड इन द कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब होता है कि इंटरनली एक एरे क्रिएट होगा 100 साइज का, कितना, 100 साइज का, तो उसका कैपेसिटी कितना हो गया 100। अभी साइज कितना है, साइज मतलब कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर, अभी 0, तो कैपेसिटी होगा 100 और साइज होगा 0। ये समझ में आ रहा है? गिव यू 100। अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ABC, लेट्स से ABC, अभी लेंथ आपका 3 आना चाहिए, और कैपेसिटी आपका बाय डिफॉल्ट कितना होता है, अराउंड 62 होता है, आई थिंक इट विल बी अराउंड 60, तो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 16, मतलब 3 प्लस हो गया। कैसे बढ़ेगा कैपेसिटी, यहाँ पर देखो, जब भी आप कोई देते हो वैल्यू, इसका कैपेसिटी देखो आप, कंस्ट्रक्टर में बाय डिफॉल्ट 16 होता है, और प्लस जो भी स्ट्रिंग आप दे रहे हो डबल कोट्स में, उसका लेंथ, मतलब कितना लेंथ आपका 3, 3 प्लस 16 19, मतलब एक्स्ट्रा वो 16 ऐड करेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं देता हूँ मैं, इफ आई डो नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, व्हाट इज द कैपेसिटी 16, इट विल बी 16।
हाँ, क्यों दिया? अरे उन्होंने दिया है भाई, yes. उन्होंने बोला है कि ये बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट क्रिएट करके रखो 16 का। जैसे कैपेसिटी बाद में बढ़ाने से अच्छे कि पहले से कुछ तो क्रिएट करके रखो, एरे क्रिएट करके रखो बाय डिफॉल्ट। आप उनको खुद बोल सकते हो कि मुझे 16 नहीं चाहिए, आप कुछ अलग दे सकते हो, इट्स ए 10। तो इंटरनली वो क्रिएट करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो एरे क्रिएट होना चाहिए, तो दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल क्रिएट अ एरे विथ 16। व्हाट द आइडिया? ओके, perfect. We'll just quickly wrap it up and we'll try to understand the difference between all of this: string class, string builder, string buffer. अरे क्या आपको पूछा जाएगा? बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। पहला डिफरेंस व्हाट इट इज एक्चुअली, इंटरनली क्या यूज करती है सारे, पहला डिफरेंस क्या होना चाहिए? म्यूटेबिलिटी। वेदर स्ट्रिंग क्लास इज म्यूटेबल, इम्यूटेबल, म्यूटेबल। आप लिटरल वे यूज कर सकते हो क्या? लिटरल वे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसको यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पर राइट, देन thread safe. Which one is thread safe? String is thread safe? Yes. String builder? No. Yes. Yes. What else? What difference you can see? ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन सेम चीज हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन सेम चीज बोला है। नो एस, सेम चीज है, म्यूटेबिलिटी दैट इज। नाउ इज देयर एनी कैपेसिटी कंसेप्ट? कैपेसिटी कंसेप्ट फॉर स्ट्रिंग? नो। यस। और कुछ डिफरेंस कैन यू फाइंड आउट? नहीं है। ओके, चलो। So that's it for your string handling. Any questions, queries? बस तक। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास, लेकिन अभी वो यूज नहीं होता। इसके अलावा आप स्प्लिट मेथड यूज करो। स्ट्रिंग टोकनाइजर बहुत पुराना क्लास था, लेकिन उसके अलावा आप स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हो। और कौन सी मेथड्स है?
स्ट्रिंग वैसे बहुत सारी क्लासेस है, लेकिन आपको अभी इतनी ज़रूरत है नहीं वैसे। जैसे मतलब अलग अलग की यूटिल्स ये तब यूज़ करोगे जब कलेक्शन होगा, तब दैट टाइम अगेन वी विल सी सम मेथड्स। अभी के लिए ठीक है, इतनी सारी सफिशिएंट है। नाउ फॉर नाउ दीज आर दी सफिशिएंट। ओके, मैंने आपको एक चीज़ बोला था, आपको ऑब्जेक्ट क्लास बनता है। ऑब्जेक्ट क्लास के लिए मैंने आपको बोला था प्रिपेयर करने के लिए, राइट? बोला था मैंने आपको कि आप लोग ने नो। चलो देखते हैं। नाउ देयर इज अ क्लास defined inside a java.lang package called as object class. What is the class name? Object class. There is a class called as object. There is a class also. There is a class also. There is a class also which is present inside the java.lang package. There is a class called as class which is present inside the java.lang package. So this is mostly useful for the reflection purpose. For now, we will not. Now this is the class that is mostly used. The class object is the root of the class hierarchy. क्या बोला जाता है इसे? मतलब जो भी है आपका क्लास हायरार्की जावा में, it is the root of class hierarchy, and every class has object as super class. For every class has a object as a mass super class. मतलब कोई भी जावा का क्लास हो उसका सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। और ऑब्जेक्ट क्लास को कॉस्मिक क्लास भी बोला जाता है बिकॉज देयर इज नो फर्दर पैरेंट आफ्टर ऑब्जेक्ट क्लास. All objects including arrays implement the methods of this class. Implement the methods of this class. Implement मतलब उनको एक्सेस होता है इन सारी मेथड्स का. अब ये कब से है क्लास? सिंस JDK 1.0 से ये क्लास इस पर्टिकुलर JDK में है. आपका ऑब्जेक्ट क्लास कब से है? 1.0 से, मतलब बहुत पुरानी क्लास है. इसके अंदर आपको कुछ मेथड्स मिलेगी. There are certain methods. There are 11 methods precisely. Now we'll be try to understand. There are 6 methods that are something we are going to understand. इसमें से अभी देखो कितनी सारी मेथड्स है. 11 मेथड्स है. गेट क्लास, हैश कोड, इक्वल्स, क्लोन, टू स्ट्रिंग, फाइनलाइज. ये 6 मेथड हम अभी देखेंगे. एंड दिस वेट, this overloaded wait method, notify all, these are something we will learn once we know the multi-threading. So multi-threading time we will understand these methods: wait, notify all. और अभी के लिए 6 methods: get class, hash code, equals, clone, toString and finalize. चलो सबसे पहला मेथड देखते हैं, get class. Now what that get class? Now all these methods are instance methods. First of all these methods are instance methods. Get class method, hash code method, equals, clone, toString, wait, finalize, notify. So can someone tell me why these methods are instance methods? Can we inherit static methods? Can we inherit static methods? Whether static method can be inherited to the child class? Final methods, private methods, these are not inherited to the child class. An object class provides these 11 methods so that every object in Java has access to these methods. What happens? Every object in Java has access to these methods, 11 methods. So these are methods provided for every other class or every other object in Java. Why? Because these are necessary for every other object.
Why these methods are provided? These methods are given so that these methods can be reused by every other class or every other object in the Java. मतलब हर एक क्लास के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड्स अवेलेबल है, रेडी टू यूज है. So these are inherited to the every class, every object in Java. क्यों इनहेरिट की है, क्यों उन्होंने दे दिए मेथड्स? Why they have provided these methods? Because these are very much useful. These methods are very much useful for every other class. सबको ये मेथड मिलती है, क्यों? उनको क्योंकि सबको जरूरत पड़ती है. Why these methods are provided? Because these methods are needed for every other object. ये जरूरी है. These methods are very much useful. अगर आप यूज भी नहीं कर रहे हो लेकिन बिहाइंड द सीन यूज हो रही है मेथड बहुत सारी. अभी तक आपको टू स्ट्रिंग मेथड, हैश कोड मेथड, इक्वल्स मेथड आप मतलब बिना सोचे भी आप यूज कर रहे थे. टू स्ट्रिंग मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल होता है जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, जब भी कोई आप रेफरेंस प्रिंट करते हो, तो रेफरेंस जब प्रिंट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है, आप ना चाहते हुए टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है. तो बहुत सारी मेथड्स है जो आपको यूजफुल मेथड्स है, इसलिए ये मेथड्स दिए. तो क्या क्या मेथड्स आपके पास? गेट क्लास, हैश कोड, इक्वल्स, क्लोन, टू स्ट्रिंग, फाइनलाइज, और ये आपकी वेट, ओवरलोडेड थ्राइस, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल. ये 5 मेथड हम नोटिफाई ऑल, वेट, ओवरलोडेड थ्राइस, ये 5 मेथड हम मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे. अभी के लिए 6 मेथड्स है. तो पहला मेथड देखते हैं. अभी ये नेटिव कीवर्ड भी आपने देखा होगा. यहाँ पर नेटिव कौन कौन सी मेथड्स हैं? देखो आप, नोटिफाई ऑल, वेट नहीं, ये वाली देखो, वेट, and these there are some methods which are native, and finalize method is not native, then toString is there, clone is native, equals is there, hash code is native, get class is there. अभी देखो get class, hash code, उसके बाद clone, get class, hash code, clone, notify all, and this wait. These are native methods. Native मतलब क्या मतलब होता है? What do you mean by native? Native means their code is not written in Java. Can you see the code here? Can you see the method bracket or something like that? Method body or something? So it means this method is abstract, huh? Then, so this method is not abstract. This method contains the body, but that method logic is not written in Java. That's why it is called as native method. So Java has already written this code behind the scene. Get class. Now what this get class method does? Returns the runtime class of this object. मतलब get class method कोई भी रेफरेंस कॉल करता है तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? रनटाइम क्लास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. मतलब सिंपल आप देखो क्या मिलेगा आपको. यू विल गेट डेटा और ऑब्जेक्ट दैट इज ऑफ टाइप क्लास. क्या मिलता है आपको? रिटर्न टाइप क्या है मेथड का? गेट क्लास. मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? क्लास. और क्लास क्या है? प्रीडिफाइंड क्लास. तो मतलब आपको मिलेगा क्या? आपको एक मिलेगा रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट. जब भी मेथड कॉल करोगे तो गेट क्लास मेथड आपको क्या रिटर्न करेगी? जो भी returns the runtime class of this object, and that return class object is the object that is locked by static synchronized methods of represented class. So now let's try to understand. चलो अभी ऑब्जेक्ट मेथड की मेथड्स आपको कॉल करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अभी demo1 is a child class of object class. demo1 is a child class of object class. Yes. आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. दिस इज अननेसेसरी. दिस इज अननेसेसरी. यहां पर देखो, क्लास demo1 explicitly extends java.lang object. Remove this redundant extends object. अगर आप नहीं भी लिखते हो फिर भी ये ऑटोमेटिक हर एक क्लास के लिए ऑटोमेटिक ऐड, आपको एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. हर एक जावा क्लास के लिए ऐसी, अभी तक हमने जो भी क्लासेस क्रिएट करें हर एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्लास ऐसी ही एक्सटेंड होती है. आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एक्सप्लिसिटली.
तो ऑब्जेक्ट क्लास नीड नॉट टू बी एक्सप्लिसिटली इनहेरिटेड, ऑटोमेटिकली आपको इम्प्लिसिटली मिल ही जाती है, आप चाहे ना चाहो आपको मिल जाता है। ठीक, नाउ मुझे अभी ये मेथड्स, दीज मेथड्स, अभी मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स डेमो वन क्लास को कब मिलेगी? परफेक्ट। व्हेन इनहेरिटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, one object tries to acquire the properties and methods of another object। तो अभी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब इंटरनली पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उसके साथ चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट? इसलिए जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, डेमो वन इक्वल टू, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, अभी तो कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर होते हो सबसे पहला क्या लाइन होता है इसमें? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन यू हैव? यहाँ पर नहीं लिखते हो लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लाइन होता है? सुपर। सुपर का लाइन क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता है। ठीक, नाउ डेमो वन डी इक्वल टू न्यू डेमो वन, यहाँ पर लिखा है, तो कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल होगा और यहाँ से सुपर क्लास, अगर आप नहीं भी लिखते हो फिर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंटेन्स ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएशन। आज अभी आपके पास रेफरेंस है। नाउ डी डॉट, ये मेथड्स कहाँ से आ रही है आपको? टू स्ट्रिंग, गेट क्लास, हैश कोड, इक्वल्स, फाइनलाइज, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, कितनी सारी मेथड्स, 11 मेथड्स आपको मिली है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेथड्स आपको, ये मेथड्स आपको मिली है। कहाँ से मिली है आपको? ऑब्जेक्ट क्लास के। आप ये नहीं भी लिखते हो फिर भी आपको ये मेथड्स मिलती है। तो डेमो डॉट गेट क्लास, अब ये गेट क्लास मेथड क्या रिटर्न करती है? व्हाट दिस गेट क्लास मेथड रिटर्न्स? दिस क्लास returns a class, class reference, अभी के लिए मैं बस रेफरेंस लिख रहा हूँ। ओके, आपको क्या मिला है? what you got by calling the get class method? you got the object of type class। क्या मिला आपको? you got the object of type class, मतलब क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या मिला आपको? गेट क्लास, गेट क्लास मतलब गेट प्रोडक्ट, गेट कस्टमर, इसका मतलब होता है गिव द कस्टमर ऑब्जेक्ट। गेट स्टूडेंट, गिव द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। वैसे ही गेट क्लास मतलब गिव द क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट, गिव द क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट। अभी इस ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस है, ये रेफरेंस का यूज करके आप बहुत कुछ देख सकते हो। रिफ्लेक्शन बोला जाता है इसे, रेफरेंस डॉट। अब इसका रेफरेंस मतलब ये किस क्लास का है? गेट नेम। अभी आपको रिटर्न क्या करेगा देखो, मतलब आपका जो क्लास है, कौन सा क्लास? इस क्लास के लिए उन्होंने क्या किया, सारी जो भी प्रॉपर्टीज है डी क्लास। अभी देखो यहाँ पर क्या प्रिंट किया उसने, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। मतलब कोई भी क्लास का डिटेल स्टोर करने के लिए, वन सेकेंड, कोई भी क्लास का डिटेल स्टोर करने के लिए आप एक और क्लास यूज होती है, क्लास। क्लास, क्लास, क्लास क्यों क्रिएट करी है? कोई भी क्लास का डिटेल स्टोर करने के लिए। अभी मुझे क्या करना है कि करंट क्लास का, डेमो वन क्लास का क्या नाम है, किधर प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या क्या मेथड्स है, आप ये देख सकते हो। तो रेफरेंस डॉट गेट मेथड्स, गेट मेथड्स का एरे मिलता है आपको। क्या मिलता है? मेथड्स का एरे। और उसमें से मुझे चाहिए फर्स्ट मेथड, उसमें अंदर कोई मेथड है क्या? यस, डॉट गेट। तो मुझे इस क्लास के अंदर, कौन से क्लास के अंदर? डेमो वन क्लास के अंदर सारी मेथड्स का एरे मिलेगा और उस मेथड का एक फर्स्ट मेथड है, उसका नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। कौन सी मेथड है आपके क्लास के अंदर? कोई मेथड है क्या आपके क्लास के अंदर? इस क्लास के अंदर क्या कंस्ट्रक्टर्स है, कितने फील्ड्स है? यहाँ पर कोई वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, इंट ए इक्वल टू 100, ये इंस्टेंस वेरिएबल है।
मैं क्या चाहता हूँ कि उस वेरिएबल इस क्लास के अंदर, मतलब कौन से क्लास के अंदर, डेमो वन क्लास के अंदर कितने सारे वेरिएबल्स है उसकी सारी लिस्ट दे दो, सबका नाम दे दो मुझे, वो भी कर सकते हो आप। रेफरेंस डॉट गेट फील्ड्स, एरे मिलेगा, डॉट डॉट नहीं, मुझे पहले उसका एरे मिल गया, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट उसका नाम चाहिए मुझे। इसे ये रिफ्लेक्शन ईपीआई बोला जाता है इसे। एरे इंडेक्स मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। चलो आप, मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज प्रिंट कर सकता हूँ। डॉट लेंथ, कितनी सारी फील्ड्स है देखते हैं एक बार। फील्ड्स होगी तो देखते हैं। 0 फील्ड्स है। फील्ड्स मतलब आपकी स्टैटिक फील्ड्स हो गया आई थिंक। गेट, अब आपको मेथड का नाम चाहिए, कितने क्लासेस है, कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स का नाम क्या है, सब कुछ आप डिक्लेयर फील्ड्स, आप उसका नाम लिख सकते हो। जो भी फील्ड्स है, डिक्लेयर्ड मेथड्स, ये सब कुछ आप गेट फील्ड नेम, गेट फील्ड, बहुत सारी चीज़ है इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मिलती है। तो पहली मेथड क्या देखी हमने, गेट क्लास क्या रिटर्न करती है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, इट इज ए, बोलो बोलो फटाफट, इट इज ए प्री डिफाइंड क्लास present inside the java.lang package. Every class in Java has a by default, अरे, every class in Java has a by default parent class. Every class in Java has a by default parent class called as object class. So object class is the root class in root class or super class for all of the classes in Java. Object class is also called as cosmic class since it does not have any further parent. Object class is also called as cosmic class since it does not have any further parent. Now object class contains 11 methods which are available for every other class in Java. Every other class in Java. So what all the methods are? Methods of object class. बताओ फटाफट नाम। गेट क्लास के बाद hashcode, to string equals clone finalize, ये सारी 6 मेथड्स है। के बाद आपके पास है wait infinitely, wait for milliseconds, wait for milliseconds and nanosecond। के बाद notify and notify all। ये सारी मेथड्स हर एक को पता होनी चाहिए। ग्यारह मेथड्स है। ये 5 मेथड हम कब पढ़ेंगे, जब मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट होगा। So what get class method does? What get class method? Now get class method, it is a native method and returns a object of type class. Hashcode method returns a integer value. It returns a
integer value, and this is also native method. Native मतलब इनका कोड नॉन जावा में. Right? Let's talk about this first method that is called as get class. What get class method does? This method returns the object of class, object of class, returns the object of class. This object contains all the information regarding the के बारे में इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द करंट क्लास ऑब्जेक्ट. तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी करंट क्लास होगा, आपने जिसके ऊपर जिसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा, रेफरेंस देते हो आप, राइट? तो अभी लेट से स्टूडेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस है, उसके रेफरेंस से गेट क्लास मेथड कॉल करोगे तो आपको स्टूडेंट क्लास को इंस्पेक्ट करने का मौका मिलता है. क्या? अभी स्टूडेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने, उसका रेफरेंस है, उसके रेफरेंस से गेट क्लास मेथड कॉल करोगे तो स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या मेथड्स है, उसका क्या नाम है, कौन से पैकेज में है, उसके अंदर क्या वेरिएबल्स है, क्या कंस्ट्रक्टर्स है, सब कुछ आपको इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किस ऑब्जेक्ट में मिलेगी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में. सिंपल. ये समझ में आ रहा है गेट क्लास मेथड क्या करता है? यस. उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स है गेट क्लास, उसका नाम, उसकी मेथड्स का नाम, बहुत कुछ चीज़ें आप देख सकते हो. ठीक. एग्जाम्पल आई विल जस्ट टू यू. Let's say I have a student class. I'm just creating a student class here itself. के अंदर ही हम लोकल क्लास बनाते स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पर कुछ मैं मेथड्स लिख रहा हूँ. void m1 m2 m3. okay, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट क्लास का न्यू स्टूडेंट. अभी इस रेफरेंस का यूज करके मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ गेट क्लास. गेट क्लास से मुझे स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस मिला है. अभी इस पर्टिकुलर रेफरेंस का यूज करके मैं चेक कर सकता हूँ जो रेफरेंस मिली है स्टूडेंट क्लास गेट, उसका नाम मिल सकते हैं, उसकी फील्ड्स क्या है, इसकी मेथड्स क्या है. सो आई विल जस्ट सिंस वी हैव मेथड्स, आपको मिलेगा मेथड क्लास का एरे. सो मेथड इज अ क्लास, अगेन उस क्लास का ऑब्जेक्ट का है. अब मुझे प्रिंट करने के उसके अंदर क्या क्या मेथड्स है. आई विल से मेथड एंड मेथड्स, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ मेथड डॉट गेट नेम. तो सारी जो भी मेथड्स है इस क्लास के अंदर, कौन से क्लास के अंदर? स्टूडेंट क्लास के अंदर, उन सब का नाम प्रिंट हो गया. अरे ये भी मेथड दे दी उसने, ऑब्जेक्ट क्लास की भी दे दी उसने. ओके, परफेक्ट. मेथड्स, स्टैटिक मेथड, लेट मी टेक दिस एज स्टैटिक मेथड्स. स्टैटिक मेथड नहीं डिफाइन कर सकते हम, राइट? लेकिन आप इंस्पेक्ट कर सकते हो. क्या कर सकते हो आप? इंस्पेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को. मतलब उस क्लास के अंदर क्या फील्ड्स है, क्या मेथड्स है, क्या कंस्ट्रक्टर, ये सब कुछ आप इंस्पेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर थिंग के लिए. सिंपल. ओके, let's talk about the next method, that is hash code method. What hash code method does? कोई भी क्लास देखो, स्टूडेंट क्लास बनाई आपने, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दो, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. अभी ऑब्जेक्ट बन गया.
there is an object. Now when I say s dot hash code, now hash code method returns a integer. Hash code method returns a integer. What is that integer? What is 23934342 address है? Is this address? हैश कोड, हैश कोड मतलब क्या होता है? हैश मतलब हैश, हैश मतलब हैश। क्या होता है हैश कोड? क्या होता है हैश कोड? This method, first of all, let me tell you that this method returns an integer value. Returns an integer value. Perfect. Now, what is this integer value? Now, hash is a process of hashing, मतलब converting a bigger thing into smaller one. क्या होता है hashing? Hashing means converting a bigger string to smaller string. That's it. अभी जो आपका मेमोरी एड्रेस है, वी हैव अ बिगर मेमोरी एड्रेस, उस मेमोरी एड्रेस का यूज करके उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल इंटीजर जनरेट किया. सो दे हैव अप्लाइड अ हैश फंक्शन. उसको इनपुट क्या है, आपका एक्चुअल मेमोरी एड्रेस. उस मेमोरी एड्रेस का यूज करके उन्होंने एक इंटीजर जनरेट किया, और जो जनरेटेड इंटीजर है दैट इज नथिंग बट वी गेट एज आउटपुट. तो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस इज हैश्ड. हैश्ड मतलब हैशिंग कर दिया उसका, एक्चुअल मेमोरी एड्रेस हैश्ड and integer value is generated. So kind of short value generate कर दिए. Now that generated value is written by code. अभी लेट से दो रेफरेंसेस है, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं. दो रेफरेंसेस है, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं. उनका मेमोरी मतलब एक ऑब्जेक्ट मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हो, तो दोनों का हैश कोड सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? दोनों का एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों का हैश कोड सेम होगा या डिफरेंट होगा? परफेक्ट, दैट विल बी. नाउ आई क्रिएट S1 एंड S2. नाउ S2 इज पॉइंटिंग टू S1. इसका मतलब मैंने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्या? डिड आई क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट? नाउ व्हाट आई डिड, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ न्यू रेफरेंस वेरिएबल which is having the exactly same address of S1. तो S1 और S2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों का हैश कोड भी सेम ही होगा. So both references are pointing to the same object, so their hash code will be also clear. Okay, one more. अभी आपने लेटेस्ट आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या है? स्ट्रिंग क्लास, राइट? दोनों का हैश कोड सेम होगा, डिफरेंट होगा? लेकिन स्ट्रिंग क्लास ने एक गड़बड़ करी है. गड़बड़ नहीं बोल सकते, उन्होंने क्या किया है, हैश कोड मेथड को ओवरराइड किया है, और वो चाहे जो चाहिए वो ऑब्जेक्ट वो जनरेट कर रहे हैं. इफ यू सी व्हाट आर द इंटीजर दे वांट, दिस इज अ हैश कोड जनरेटेड बाय. अभी ये इंटीजर किसने जनरेट किया है? स्ट्रिंग वाले. ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं है. दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट जनरेटेड बाय द original Java. This is just an integer generated by string class. So hash code method is overridden inside the string class. अगर आप चाहते हो कि जो ओरिजिनल हैश कोड जनरेट किया होगा किसने, सिस्टम ने, उसका एक्चुअल मेमोरी एड्रेस का, वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक मेथड कॉल करनी पड़ती है. सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड है आइडेंटिटी हैश कोड, और उसको आप बस पास करो str1. मतलब hash code method is overridden. Where it is overridden, hash code method is overridden inside the string class.
and it generates the hash code based on the object content. तो ऑब्जेक्ट कंटेंट सेम है तो उनका हैश कोड सेम रहेगा. Now, if you want to get system generated, if you want to get system generated hash code, then which method we can use? System class के अंदर है system dot identity hash code. अब इसे कॉल कर सकते हो. अभी दोनों का हैश कोड सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? कैन एनीवन टेल मी? परफेक्ट. एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट कर रहा है हीप में, एक पॉइंट कर रहा है एससीपी में. देखो दोनों का हैश कोड अलग अलग है. क्लियर? क्लियर है? नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जो एससीपी में ऑब्जेक्ट है ना, उसका रेफरेंस चाहिए मुझे. अभी देखो एक लाइन में, अभी एक और इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ. str1 किससे पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द हीप. वहां पर एससीपी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, राइट? तो मुझे उसका रेफरेंस चाहिए. कैसे मिलेगा? intern is a method. Now str2 I have created. Now that reference is pointing to an object which is यहाँ पर सेम आंसर आया ना. इंटर्न मेथड क्या करता है? उस पर्टिकुलर रेफरेंस में, अभी str1 ने क्या किया था? दो ऑब्जेक्ट बनाते, एक हीप में और एक दूसरा एससीपी. हीप में तो ऑलरेडी str1 पॉइंट कर रहा है. आप चाहते हो कि एससीपी का एड्रेस हो, इसके लिए कौन सी मेथड है? इंटर्न मेथड. ठीक, समझ में आया? हैश कोड मेथड क्या करता है? बस हैशिंग मतलब कन्वर्टिंग अ बिगर मेमोरी एड्रेस इनटू अ स्मॉलर वन. सो मेमोरी एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू अ इंटीजर वैल्यू. जो आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है वो हैश मतलब एक्चुअल मेमोरी एड्रेस नहीं है. वो actual memory address is not accessible to the developers. The actual memory address is hashed and based on that it is generating the integer value. Clear है ये वाला? चलो, with that we will stop today and I request you to go through rest of the 4 methods. Anyway, I will going to cover that, but मैं किसी को पूछूंगा कल.